Hello guys and welcome back to my YouTube channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. Today I am making this video because Instagram पे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली आपने कैसे कम्प्लीटली मेमोराइज की थी, एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत होती है एंड ऑल दैट. बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग देम ऑन द टेक्स्ट कुछ दो चार लाइनों में, आई थॉट टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, एंड एक्चुअली देयर आर सो मेनी स्टेप्स दैट कलेक्टिवली लीड टू 100% मेमोरी. तो आई होप आपको वीडियो 110% आपको बहुत मदद करने वाला है, तो वॉच टिल द एंड. एंड आई वांट टू गिव डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर एक्चुअली रेडी टू हार्ड वर्क अ लॉट, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी एट माई प्रिपरेशन टाइम दैट आई वॉज रेडी टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट द हार्ड वर्क वॉज कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस बिकॉज देयर वॉज नो गाइडेंस फॉर मी कि मुझे आइडियली पता चल सके कि ये चीज़ को करने के लिए ये सही तरीका है, ये चीज़ को करने के लिए ये सही तरीका है. So for those students who are ready to hard work a lot but they are not getting any direction, for them this video will be very helpful. And for other students who are opening this video so that आपको पता चल सके कि कोई shortcut है, तो there is no shortcut to achieve anything like this in the NEET. So let's get started. And first of all, I'll be explaining 100% memory in the 3 steps. First of all, understanding the chapter, multiple readings and solving the question, and I'll be explaining each of them very nicely. So let's get started. So just now I told you about the 3 steps to memorize any chapter, and one of the step was solving question. Now when we come to solving question, there are 2 types of the question solving that we need to focus on. First of all, it's NCERT based question and the second is previous year question. And मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि previous year question का एक ideally एक जगह बताओ जहाँ से हम solve कर सकें. I told about some apps and sites, लेकिन आप लोग कहते हो कि online बहुत distraction होता है, तो आपको कोई hard copy चाहिए थी. तो at my NEET preparation time, I personally used Disha Publications previous year question, and that was really awesome. So I think I'll recommend that only. And Disha Publication has finally updated their previous year question, and in this book they are providing 35 years previous year question of the NEET. They have made this book chapter wise also as well as subject wise. For example, this is in my hand is of physics, and you have biology and chemistry as well. Now I'll be telling you about the features of this book so that आपको पता चल सके एक्चुअली कितनी अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट आपको स्पून फिट करके दे रही है आपके सारी वीकनेस को हटाने में. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं अगर आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर की बात बताऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर यू विल कम अक्रॉस सच टेबल्स जहां पे आपको 2 चीजें बताई रहेंगी कि इस चैप्टर से भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, ईजी था, हार्ड था, मीडियम था. सो बाय दिस यू विल गेट अ बेसिक आइडिया कि चैप्टर हमें कितना हार्ड वर्क करना है, कितना नहीं करना. द सेकेंड थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस बुक इज क्वेश्चन के सामने ही आपका पेज नंबर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के उस पेज नंबर में ये क्वेश्चन कहाँ है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज बायोलॉजी, सो दैट यू गाइस कैन कम टू नो दैट विच वॉज दैट पेज जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और उसके से आज आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत हुआ है, एंड आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो. The third thing that I loved about Disha Publication, and I think which is so far the best only in Disha Publication, is the solution part. And they provide the hint and the solution in 3 parts. First of all, they directly provide the answer key in a tabular column. Second, they give the hint of that particular question अगर आपसे solve नहीं हो रहा. And at last, they'll be giving the solution of that question. तो आपको तीनों चीज़ इस बुक में अवेलेबल है. जिस हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल हो आप तीनों यूज़ करिए. जिनका फिजिक्स बहुत वीक हो उनके फिजिक्स को हर एक की डिटेल सोल्यूशन चाहिए होगी, एंड एक्चुअली दे हैव अ वेरी डिटेल सोल्यूशन फ्रॉम स्टेप 1 to step 10. So what are you waiting for? Previous year question plays a very important role in your NEET prep, as I have already told that 30 to 40% of your NEET paper is previous year question only, and any of the chapter that you feel difficult, at least just do the previous year question and analyze those topics only. You will 100% solve those questions whatever will be coming in the NEET. So please go and order physics, chemistry and biology updated book according to the latest pattern NCERT what is following. So let's come to the first step, that is understanding any chapter or lecture. So when it was my drop year, then I used to think that chapters like plant kingdom, animal kingdom does not require any understanding, or watching their lecture is just a waste of time. But there was just a clickbait on Tarun sir's lecture of plant kingdom, and that was the first lecture of the plant kingdom where he gave a basic idea about algae, and I just watched it. I started watching the lecture, and soon the lecture progresses and I completed the first introductory lecture of the algae. I realized that how much powerful is understanding any chapter, and soon I completed the whole plant kingdom series of Tarun sir, and मुझे उसके बाद प्लांट किंगडम 2-3 वीक तक भी रिवाइज नहीं करता था, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द एनसीईआरटी फ्रॉम लाइफ साइकिल ऑफ द लीवरवर्ट एंड मॉसेज एंड टेरिडोफाइट जो कि बहुत जल्दबाजी में दी गई हुई है. लेकिन तरुण सर एक्सप्लेन दैट ऑल थिंग्स सो नाइस वे. ही डजंट गॉन बियॉन्ड एनसीईआरटी, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली. और एनसीईआरटी की लाइन को इन्होंने इतने डिटेल में समझाया कि आफ्टर अटेंडिंग दैट लेक्चर आई रेड माई एनसीईआरटी 1 or 2 टाइम एंड दैट्स ऑल. देयर वाज नो नीड फॉर मी टू रिवाइज दैट एनसीईआरटी ऑफ प्लांट किंगडम रिपीटेडली फॉर सो मेनी डेज. और 2-3 वीक के बाद भी मैं
क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मुझसे बड़ी इजीली सॉल्व हो रहे थे, वेदर इट इज एग्जाम्पल, वेदर इट इज लाइफ साइकिल, वेदर इट इज एनसीईआरटी डायग्राम्स को भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो ऑन दैट डे आई अंडरस्टैंड द पावर of understanding anything and then learning in that will completely change your perception. And specifically I learned that for inorganic chemistry also बहुत चीजें हैं लर्न करने को. ये मत सोचो लर्न रट्टा मार लूं तो हो जाएगा, समझ के लर्न करोगे तो आपको भी पता चलेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे. So after understanding of 50% work has been done, congratulations. Now the next 50% work has been divided into 25% and 25%. The first 25% comes with multiple reading. अब मैंने अगर चैप्टर को इतनी अच्छे से समझ लिया, जबकि मुझे ऑलरेडी अब लर्न होना चालू हो गया है, उस पर अगर मैंने मल्टीपल रीडिंग उस पर्टिकुलर चैप्टर की कर ली तो कोई डाउट ही नहीं कि मुझे एक एक लाइन अच्छे से याद ना हो. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और अटेंडिंग एनी लेक्चर, इट्स योर टाइम टू मल्टीपल रीड दैट पर्टिकुलर चैप्टर. कभी भी आप कर सकते हो. लाइक आई हैव अपलोडेड माई होल एनसीईआरटी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन सी दैट मैं हर चैप्टर के ऊपर कुछ स्टिक्स बनाया था, 20 स्टिक्स वाज माय टारगेट की नीट के पहले तक मुझे 20 बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है. और अगर मैंने आज लेक्चर अटेंड किया है तो 5 स्टिक बना लेता था कि मुझे अंडर 1 वीक 5 बार इस चैप्टर को रीड करना है. नींद नहीं आ रही तो एक बार फटाफट चालू कर देता था, रीड करना अपने आप खत्म हो जाता था. एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एज सून एज आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रीडिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर, मेरा टाइम और कम होते जा रहा है. अगर मैं फर्स्ट टाइम प्लांट किंगडम आधे घंटे में पढ़ा हूं तो नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ 20 मिनट्स लग रहा था, और फिफ्थ टाइम में तो मुझे शायद 10 मिनट में फटाफट, क्योंकि मुझे आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग ऑल द लाइन्स, ऑल द डायग्राम, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी, एंड एट लास्ट इट टुक मी ओनली 15 to 10 minutes to read the whole plant kingdom along with the example. That is a power of multiple reading. एंड द थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग विच प्लेज द की इंपॉर्टेंट रोल, जो आपके दोनों स्टेप्स को भी और एनहेंस कर देगी, दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. जब आपने चैप्टर को ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया, आपने इतनी बार मल्टीपल रीड कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दैट अंडरस्टैंडिंग स्किल. यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 2 कैटेगरी. सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने. हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आप अपना दिमाग लड़ाओगे कि ओके ये क्वेश्चन कौन से लाइन पे था, कौन से पेज नंबर पे था, तब दैट विल बी लाइक 100% यू विल मेमोराइज दैट चैप्टर वेरी नाइसली. और उसके बाद आई कैन गारंटी अगर आपने तीनों स्टेप परफेक्टली फॉलो किया तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता वो पर्टिकुलर चैप्टर में. एंड इट्स लाइक सॉल्व ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन, जितना कर सकते हो, 200, 300, 400. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर डेडिकेशन कि आपको चैप्टर को कितने अच्छे से करना है. पर्सनली आइडियली आई फील दैट 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व हर चैप्टर के आपको करने चाहिए आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर चैप्टर. उसके बाद टेस्ट सीरीज आएंगी, फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे, बहुत ज्यादा डीपीपीज आएंगी, उसमें भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और रिटेन होना चालू हो जाएगा और अच्छे से आप मेमोराइज करना चालू हो जाओगे. एंड आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर योर 100% मेमोरी हैज बीन डेवलप्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. चाहे वो जितना भी रट्टा मारा वाला चैप्टर, वेदर इट इज एस ब्लॉक ऑफ इनऑर्गेनिक और इट इज एनिमल किंगडम ऑफ जूलॉजी, जिनमें सबसे ज्यादा मेमोराइजिंग की जरूरत है, वो सब चैप्टर में भी आप मास्टर कर लोगे. आपको आधी रात को भी कोई उठा के कोई पूछ लेगा, आप परफेक्टली करेक्ट आंसर दोगे. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अगेन जैसा मैंने कहा, दिशा पब्लिकेशन की आप बुक यूज कर सकते हैं. बहुत ही आइडियली, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी फीचर वाली बुक है. सो आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर memorizing any chapter completely 100%. and I know it's gonna definitely work. It's just about आप इसको सही स्टेप में फॉलो करो. It requires dedication and patience, and after 1 month आपको रियलाइज होगा कि आप मेरी ये टेक्निक जरूर वर्क करी. So thank you for watching my video. We'll meet in the next video. Till that, take care and bye bye.